Hello everyone, I'm Abhishek Yadav and I welcome you all to the PIIT Institute of Engineering and Technology. We are doing the subject mathematics first. In the last class, we discussed the trigonometric ratios in terms of quadrants, and today we will do some problems related to that. So, quickly, let me recap what we did in the last class. We defined and discussed trigonometric ratios in different quadrant, in which we discussed that in the first quadrant all trigonometric ratios, all means the six trigonometric ratios, means sine, cosec, I mean the reciprocal of sine, similarly cos and sec, tan and cot, all six trigonometric ratios are positive. In the second quadrant, sine theta and cosec theta is positive. In the third quadrant, tan theta and cot theta are positive. In the fourth quadrant, cos theta and sec theta are positive. So we gave you two learning formula: add sugar to coffee, where first letter of each these words will tell you that in the first quadrant A for all, second quadrant S for sugar, so S would be sine and its reciprocal, T would be tan and cot, and here C would be cos and sec. And other formula was after school to college. So today we are going to discuss just the numericals, or you mean the problems of this trigonometric ratio in different quadrants. So let me quickly recap one theorem, Pythagoras theorem, which we discussed in earlier classes. So what does Pythagoras theorem says? So Pythagoras theorem says, suppose you have this right angle triangle and suppose this point is A. Okay, so suppose this point is A, this is B and this is C, right angle at B here. So suppose we are considering this angle C, suppose this is theta. So we discussed in the previous class that side opposite to this angle would be what? Perpendicular. Side opposite to this right angle would be hypotenuse, and side adjacent to the angle would be base. So let's make this small p. So what does Pythagoras theorem says? That the square of the hypotenuse, I mean this h square, would be equal to the sum of the other two sides, I mean square of sum of other two sides. So it would be p square plus b square. So basically हमें क्या करना है, इस रिलेशन को या फिर ये जो थ्योरम है, दिस थ्योरम इज व्हाट, दिस इज Pythagoras or Pythagoras theorem. So we need to apply this theorem in the coming questions. So इसको याद रखना है हमें कि हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होगा that would be equal to the sum of squares of these two sides. Is it fine? So let us move to the first question. Here it is saying these are the basic questions. I mean you have also learned this in the class 10th also. ये सब आपने class 10th में किया. Just we are taking from there only. So if sine A is 3/4, so if you remember here A is angle, so sine A is 3/4. Now sine is what? Perpendicular upon hypotenuse. यही डिस्कस किया था ना हमने, परपेंडिकुलर यानी साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन में हाइपोटेनियस. सो सपोज वी हैव दिस राइट एंगल ट्राइंगल एंड suppose this is C, this is B, this is A, right angle at this point B. Now here they are saying that sine A is 3/4 means P upon H. Now we need to find cos A and tan A. Now for cos and tan, for both of these we want base, because base is not here in this case of sine. Why base? Because this is cos would be what? Cos theta. Here cos A would be base upon hypotenuse and tan A would be perpendicular upon
base. So in both of these we want base, and to find out base we would be applying the Pythagoras theorem. So how it would be? So this is sin a is 3 upon 4, so this would be p upon h. And in terms of sides, if we want to write in terms of sides, so this would be angle, so this would be perpendicular. Okay, here it would be base and here it would be height. So it is, let us use the small letters only. So it would be 3 upon 4 is equals to p upon h. Now whenever you can say that this p upon h is 3 upon 4 equals to k. Let us say this is equal to k. Now what you can do here, now you can write this p upon h equals to 3 upon 4 equals to k. So how would you do that in terms of this sides? So this side would be what? This side would be p would be what? BC, hypotenuse would be AC, and it would be 3 upon 4 into k, not into, it would be equal to. Okay, so what can you write this as BC? So this BC can be written as 3k, and this AC can be written as 4k. Am I clear with this? Am I or am I not? Now moving forward, I want this AB. Now what does Pythagoras theorem says? AC square is equals to BC square plus AB square. Here hypotenuse square, so it would be AC plus BC square plus AB square. So what is here? So AC is what? We are getting AC as 4k. So it would be what? 4k square equals to BC would be what? 3k. So it would be 3k square plus AB square. Now 4k square would be what? पहले 4 का स्क्वायर करेंगे, so it would be 16, और फिर k का स्क्वायर करेंगे, so it would be 16k square. What identity we are using here? We are using that whenever a is multiplied by v and it has some power, it can be written as a raised to power n into b raised to power n. So it would be 4 square into k square, so it would be 16k square. Here it would be what? 9k square equals to, no, not equals to, it would be plus AB square. Now we want this AB square, so we can take this side, so it would be 16k square minus 9k square equals to AB square. So it would be 7k square, here it would be AB square. Now we have this AB square as 7k square, it would be what? 7k square. So AB would be what? Plus minus root 7k square. Since AB is distance, so it would always be positive. So here it would be that AB is root 7k. Am I clear till here? Is it fine? We are okay with this? Now we want what? Now we have here that, now let us form this triangle again for better understanding. So here it was B, A and C. So it is okay. So it is B, A, and here it is C, and here is the angle, right angle at B. Now we get that AB is root 7 of k, and here AC was 4k and this was 3k. Now we want what? Cos of A. Now cos A is what? AB upon this AC's. Now AB is what? We are getting AB as root 7k, and what AC is given? AC is given 4k. So this cancels, I mean this k cancels this k, so it would be root 7 upon 4.
Next we had 10a. Now what 10a would be? 10 is what? Perpendicular upon base. So it would be BC upon this AB. So it would be 3k upon this AB means root 7k. This k cancels this k. So it would be 3 upon root 7. So we have got the answer that cos A is equals to root 7 upon 4 and tan A is equals to 3 upon root 7. Am I clear with this? The main thing is you need to understand this, what we have done here. If not here, so you would be able to do from here that BC can be written as 3k. Why I am writing BC as 3k and AC as 4k? Let us understand here, because sine theta is what? Sine theta is BC upon AC in this case, and you are getting the ratio 3 upon 4. You are getting what? You are getting 3 upon 4. So this can also be written as 3k upon 4k. Still the ratio would be what? 3 upon 4. So this is why we have done here. Okay, let us move on to the next question. In the next question we can write that as, so next question is what? 15 cot A would be equal to 8. Find sin A and sec A. So let us add another page here, and the question is 15 cot A would be 15 cot A is equals to 8, and we need to find what do we need to find? We need to find sin A and sec A. So we need to find sin A and sec A. Now see, 15 cot A can be written as cot A is equals to 8 upon 15. Is it fine? Now cot is what? Base upon perpendicular. So suppose we have this right angle triangle here. So you can choose any side. I mean, suppose I am saying this right angle at B. Now it is given that base is 8 up and this is 15. So in terms of these sides we can write that this cot A, which is equals to 8 upon 15, would be equal to base. What would be the base? Suppose this is your angle. So base would be what? AB, and base upon perpendicular, and perpendicular would be BC. So 8 upon 15 would be equals to AB upon BC. Let us say that this is equals to K. Now how are we getting this means AB as, I mean in the last case also we just write down that this BC upon AC is equals to 3 upon 4 equals to K, and we told you that this BC is equals to 3K and AC is equals to 4K. Now how does it come? Now you can also write this as BC upon 15. Can you not write? इसको यहाँ ले गए, and this would be what? AB upon 8 equals to K. Now इस equation, I mean इस वाले चीज को इसके इक्वल रखो. So it would be what? BC upon 15 equals to K. तो यहाँ से मेरे को क्या मिल जाएगा? That BC is equals to 15K. Are you guys following what we have done here? और यहाँ पर क्या है? AB upon में 8, I mean this is equals to K. So we get what? AB as 8K. So here BC is what? 15K and AB is what? 8K. Are you guys following? समझ में आया क्या किया हमने? Now मेरे को ये AC चाहिए, because साइन का फॉर्मूला क्या होता है? साइन वुड बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और सेक क्या होगा? सेक वुड बी हाइपोटेनियस अपॉन बेस. Now we want this AC hypotenuse. Now which formula or which theorem we will use?
Yes, Pythagoras theorem. So what does Pythagoras theorem says? That this AC square would be equal to this BC square plus AB square. Is it fine till here? Okay. Now AC square we want to know. BC is given as 15k, so it would be 15k square. Is it clear? And it would be what? 8k square. Now here it would be equal to 15 square would be 225 and k would be k square. Here it would be 64k square. 225 and 64 would be what? 289k square. So AC square would be equals to what? 289k square. So AC would be what? Plus minus root 289k square. Now again, since this AC is a distance, I mean length ही तो है side की, so this would always be positive. Therefore this AC would be what? Now 289 का I mean किसका square root या किसका square होता है? It is of 17, so it would be 17k. So it would be 17k. Is it fine what we have done here? Because AC positive क्यों है? Because this is a length. Now we want sine A. Now here we got that this point is B, this point is B, here it is A, and C, here it is the angle, and 8k, 15k and 17k, here it is 8k, here it is 15k, and this is 17k. We want sine of A. So sine of A would be what? Perpendicular upon hypotenuse. You can use, I mean, small letters or capital letter, it doesn't matter. So perpendicular is what? 15k. Hypotenuse is what? 17k. So this cancels out. So it would be 15 upon 17. Next is sec A. Sec is what? Sec A is hypotenuse upon base. Hypotenuse is what? 17k and base is what? 8k. So this kk cancels out. So it would be 17 upon 8. So this is how we will do this. Is it fine? Are you guys following this? What we have done here? We were given 15 cot A is equals to 8 and we wanted to find this sine A and sec A. So we applied Pythagoras theorem here to find out this hypotenuse. Okay, let us see the other question, the last question. Similar question. In this we are given this sec theta is equals to 13 upon 12 and we need to find all other trigonometric ratios. यानी हमको sec theta given है, बाकी की सारी चीजें हमको find out करनी है. So let us do this here. So let us add another page to and see here what the question is. Sec theta is 13 upon 12. So sec theta is what? 13 upon 12. So this sec theta is 13 upon 12. So let us make this triangle here. So here let us this triangle, right angle at this point B. Here it is A suppose and this is C and this angle would be theta because it is given in theta. Okay, now what sec theta is? Here we discussed that sec theta is what? Hypotenuse upon base. So hypotenuse is given. Hypotenuse is this 13 and this base would be 12. So we need to find out this perpendicular. So again we'll do the same thing. So it would be h upon b and in terms of these sides it would be what? It would be AC upon b. Base would be what? AB. So here we can equate these two. So it would be what? 13 upon 12 equals to AC upon AB. Let us say these are equal to k. Again doing the same thing, it would be what? AB upon 12 equals to AC upon 13 equals to k. So it would be what? Equating these two. So it would be AB
upon 12 equals to k, which would be equals to, I mean AB would be equals to 12k. Similarly, equating these two, it would be AC upon 13 would be equals to k. So it would be equals, I mean AC would be equals to 13k. So here we got AB as 12k, we got AC as 13k, and we want to find out this base, and not base, this BC perpendicular. So using which theorem? Yes, using Pythagoras theorem. So what does Pythagoras theorem says? That hypotenuse square means this AC square would be equals to this perpendicular BC square plus this base AB square, where we are given this AC and AB. So AC is what? 13k. So it would be what? 13k square. We want to find out this BC, and AB is what? AB is 12k. So it would be 12k square. So 13 square is 169, k square equals to BC square plus 144k square. Now 169k square ये इधर आ जाएगा, सो माइनस का हो जाएगा, माइनस 144k स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर. अब मैं साइड को स्विच भी कर सकता हूँ. सो इसको मैं लिख सकता हूँ BC स्क्वायर वुड बी, अब 169 में से 144 गया तो इट वुड बी 25k स्क्वायर. अगेन BC वुड बी वॉज प्लस माइनस रूट ऑफ 25k स्क्वायर. बट सिंस BC क्या है? एक डिस्टेंस है, एक लेंथ है साइड की, तो ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकती. मतलब कभी आपने सुना है कि वो -5 सेंटीमीटर की हाइट का है या उसकी लेंथ -5 सेंटीमीटर का? नहीं, बिकॉज डिस्टेंस इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी. तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा कि BC इज इक्वल्स टू 5k. सो हियर BC इज व्हाट? BC इज 5k. इज इट फाइन? तो मेरे पास ये आ गया. मेरे को सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को क्या करना है? पता करना है. सो लेट अस see here, and here it is B, here angle A, I mean theta here. So this is point C. So we had this sec theta as 13 upon 12, और यहाँ पर हमने क्या देख लिया कि it is 12k, it is 13k, and here perpendicular came out to be 5k. Now first of all let us use this reciprocal. No, you can use anything. If you want to do the reciprocal of sec, it is what? Cos. So अगर ये 13 upon 12 है तो it would be what? 12 upon 13. So cos theta would be 12 upon 13. Next, here let us go with sin theta. Sin theta is what? Perpendicular upon hypotenuse. What is perpendicular here? It is 5k. So it is 5k upon this hypotenuse is 13k. Now this k cancels out, so sine is what? 5 upon 13. Next, cos is done. Cos is what? Reciprocal of this sec, so it would be 12 upon 13. But let us write again. So it would be cos theta would be what? Base upon hypotenuse. Now base is what? Base is 12k. So it is 12k upon this hypotenuse is 13k. So it is what? 12 upon 13, because this k cancels out this k. Next is tan theta. Tan theta would be perpendicular upon base. Here perpendicular is what? 5k, and base is what? 12k. So it is k cancels out k, so it would be 5 upon 12. Again, so after 10 it would be cosec theta. Cosec theta would be what? H upon p. H is what? It is 13k. P is what? 5k. This k cancels out this k, so it would be 13 upon 5. We were having this sec, so this sec theta would be 13 upon 12. The last is cot theta. Cot theta is what? Base upon perpendicular. Base is what? 12k. Perpendicular is 5k. So this k cancels out. So it would be 12 upon 5. Is this fine? Are you guys following this? Is this clear? I think there should be no doubt. Let me quickly recap what we did here.
we just find out this perpendicular using the Pythagoras theorem. That's all what we have done here. We just are applying the theorem of Pythagoras, I mean the Pythagoras theorem, and we are just doing the calculation. Now these relations can also be find, I mean not relation, these trigonometric ratios can also be find using the identities, the three identities which we discussed. What were those three identities? Let me quickly write so that we can proceed. So the three identities were what? So it was cos square theta plus sin square theta is equals to 1, 1 plus tan square theta is equals to cot square theta, and the third was 1 plus cot square theta is equals to cosec square. Here it is wrong, it was sec square theta. 1 plus tan square theta was equals to sec square theta, and 1 plus cot square theta was equals to cosec square theta. Am I clear with this? So you can also use these three fundamental identities to get these trigonometric ratios. So in the next question we will be using these three identities. So here it is given that cos x, now we are using the quadrant, I mean जो हमने लास्ट क्लास में किया था ना कि जो किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव रहेगा नेगेटिव रहेगा, वी आर डूइंग क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट. अब इसमें क्या है कि हमको ये गिवन है, हमको ये दे दिया कि cos x जो है वो x यहाँ पर एंगल है, तो वो दे रखा है -3/5, और x कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है. सपोज दिस इज योर y एक्सिस, हियर इट इज y डैश, हियर इट इज x एंड x डैश. तो आपको दे रखा है कि ये x जो लाई करता है वो थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी आपका एंगल यहाँ बन रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में. अब यहाँ पर क्या पॉजिटिव होता है, यहाँ पर tan पॉजिटिव होता है और cot पॉजिटिव होता है. हियर इट इज x, सो लेट मी राइट in terms of x only. So it would be tan x and cot x. Okay, so we need to find the values of all five trigonometric functions या trigonometric ratios. So cos x अगर -3/5 है, और हमको अब हम जो यूज़ करेंगे वो पाइथागोरस थ्योरम को ना यूज़ करके हम जो हमने थ्री फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ की थी हम उसका यूज़ करेंगे. सो क्या है वो थ्री फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ हमने यहाँ पर डिस्कस की. क्या है वो कि cosec स्क्वायर, आई मीन cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा. साथ साथ हम इसमें कोशेंट फॉर्मूला भी यूज़ करेंगे. कोशेंट फॉर्मूला यू वुड से, और कोशेंट आई मीन रिलेशन, उसमें क्या था कोशेंट रिलेशन कि tan थीटा को आप क्या लिख सकते हो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा को क्या लिख सकते हो आप, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा. सो अगर आपके पास साइन और कॉस है तो टेन निकल जाएगा, टेन निकल गया तो कॉट निकल जाएगा, कॉट निकल जाएगा तो कॉसेक निकल जाएगा. आई मीन यूजिंग दीज रिलेशंस वी नीड टू फाइंड आउट. सो अगर कॉस स्क्वायर आई मीन कॉस एक्स है -3/5, सो यूजिंग, तो अब हम कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, यूजिंग कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1. इस आइडेंटिटी का यूज करके हमको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, यस साइन एक्स की. इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि एक्स यानी इस केस में एक्स एंगल का काम कर रहा है, वो एंगल किस क्वाड्रेंट में है. और आपने वो जो किया था ना आफ्टर स्कूल टू कॉलेज या फिर ऐड शुगर टू कॉफ़ी, उसमें जो किस क्वाड्रेंट में कौन से हैं, लेट मी क्विकली रिकैप अगेन. इसमें सारे पॉजिटिव होंगे, इसमें साइन एक्स और कॉसेक एक्स पॉजिटिव होंगे, टेन एक्स कॉट एक्स है, और यहाँ पर कॉस एक्स और सेक एक्स पॉजिटिव होंगे. तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज कॉस एक्स का स्क्वायर प्लस साइन एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू 1. अब कॉस एक्स की वैल्यू क्या है, कॉस एक्स की वैल्यू हमको दी है -3/5, सो इट वुड बी -3/5 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स स्क्वायर वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट इक्वल्स टू 1. अब 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9,
5 का स्क्वायर इट वुड बी 25 प्लस साइन स्क्वायर x is equals to 1. Okay, so this can be written as, so it was 9 upon 25 plus sine square x is equals to 1. Now sine square x would be 1 minus 9 upon 25. Is this fine? So now it is sine square x as, we can write down this as, यहाँ से LCM लिया, so it would be 25 minus 9 upon 25. 1 or 25 LCM would be 25. 1 25 ja 25, and we'll multiply this 25 by this one. So it would be what? 16 upon 25. Now this sine x, sine square x or sine x whole square would be equals to 16 upon 25, taking square root both sides, so it would be sine x plus minus root of 16 upon 25. So sine x would be equals to प्लस माइनस 4 अपॉन 5. नाउ अब मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया? मेरे पास आ गया कि जो साइन x है इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 4 अपॉन 5. नाउ अब हमको ये देखना है कि x कहाँ पर है. x अगर उस क्वाड्रेंट में है जिसमें साइन पॉजिटिव होता है तो साइन की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव का 4 अपॉन 5. बट अगर x उस क्वाड्रेंट में है जिसमें साइन नेगेटिव होता है तो x की वैल्यू क्या होगी? आई मीन नॉट x की वैल्यू, साइन x की वैल्यू क्या होगी? माइनस का 4 अपॉन 5. तो x हमारा कौन से क्वाड्रेंट में है? इन द थर्ड क्वाड्रेंट. यहाँ लिखा है ना, क्वेश्चन में गिवन है. x हमारा कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में. तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है? नहीं. तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा कि साइन x की वैल्यू क्या आ जाएगी? साइन x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 4 अपॉन 5. क्यों? बिकॉज साइन, not sine, it is x lies in third quadrant. Is it fine? So मेरे पास अब मेरे को sin x की वैल्यू पता चल गई, मेरे पास cos x की वैल्यू है. लेट अस सी क्या हम सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं या फिर हमें कुछ और आइडेंटिटी की जरूरत पड़ेगी. तो हमारे पास ये आ गया कि साइन एक्स क्या आ गया मेरे पास? माइनस का 4 अपॉन 5. कॉस एक्स मेरे को क्या गिवन था? इट वॉज गिवन एज माइनस 3 अपॉन 5. सो इट वॉज गिवन एज माइनस 3 अपॉन 5. सो मेरे पास 10x निकल जाएगा यूजिंग दैट कोशेंट रिलेशन, यानी साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स. आर यू गाइस फॉलोइंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू? सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू चाहिए तो मैं कोई सब जितने अभी तक हमने रिलेशन या आइडेंटिटीज किए हैं हम सारे के सारे रिलेशन आइडेंटिटीज का यूज कर सकते हैं. तो साइन एक्स कैसे आ जाएगा? माइनस 4 अपॉन 5 आ गया यहाँ पर, अपॉन दिस होल अपॉन, हियर इट वुड बी कॉस एक्स. कॉस क्या दिया है? हियर इट इज माइनस 3 अपॉन 5. ओके, लेट मी राइट इट क्लियरली. It is minus 3 upon 5. This 5 cancels this negative sign cancels this negative sign, and we are getting this 4 upon 3. So 10x would be what? 4 upon 3. अब हम रेसिप्रोकल रिलेशंस का यूज कर सकते हैं. रेसिप्रोकल रिलेशंस का यूज कैसे करेंगे कि अगर साइन एक्स माइनस 4 अपॉन 5 है तो कॉसेक एक्स क्या हो जाएगा? माइनस 5 अपॉन 4. कॉस एक्स कितना है? माइनस 3 अपॉन 5. तो सेक एक्स कितना हो जाएगा? माइनस 5 अपॉन 3. और 10x अगर 4 अपॉन 3 है तो कॉट एक्स क्या हो जाएगा? 3 अपॉन 4. और हम यहाँ पे लेट मी राइट फर्स्ट, देन इट वुड बी इजी. ओके, वी हैव टू ऐड दिस पेज. हियर इट इज, वी आर गेटिंग दैट साइन एक्स एज माइनस 4 अपॉन 5. cos x was given to us as minus 3 upon 5. We found out 10x as 4 upon 3. Now see, we will use the reciprocal relation. Here the reciprocal relation, sin x का reciprocal क्या होगा? cosec x. यहाँ पर क्या बन जाएगा? it would be minus 5 upon 4. cos x का reciprocal क्या होगा? sec x. So it would be what? minus 5 upon 3.
10x का रेसिप्रोकल क्या बन जाएगा, cot x, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3/4। नाउ हम थर्ड क्वाड्रेंट में हैं, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, मतलब कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है, सो 10 और cot, तो ये पॉजिटिव आ रहे हैं, इट्स मीन्स वी आर गुड इनफ कि हाँ हमने सही किया है क्वेश्चन को। ठीक है, इसी तरीके से हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्या है, साइन एक्स 3/5 है, एक्स लाई कर रहा है आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में। ओके, और हमें बाकी की ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज निकालनी है। सो इट वुड बी नाउ इजी फॉर यू, यू वुड बी एबल टू डू दिस। अब हम सेम पहली आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। कॉस एक्स की वैल्यू निकालनी है, सो दिस इज कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स की वैल्यू दी है मेरे को 3/5, स्क्वायर कर दूंगा, इट वुड बी 1। सो कॉस स्क्वायर एक्स वुड बी इक्वल्स टू, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सिंप्लीफाई, इट इज 9/25 इक्वल्स टू 1, हियर इट वुड बी cos स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस 9/25। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अगेन हियर इट वुड बी cos स्क्वायर एक्स एज वी कैन राइट दैट 25 माइनस 9/25, सेम कैलकुलेशन जो हमने पीछे की है। cos स्क्वायर एक्स वुड बी 16/25, सो cos एक्स वुड बी प्लस माइनस रूट ऑफ 16/25, सो cos x would be प्लस माइनस 4/5। तो हम कौन से क्वाड्रेंट में हैं, वी आर इन दी सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और इसका रेसिप्रोकल यानी कोसेक वो पॉजिटिव होते हैं। तो यहां से मेरे पास क्या मिल गया, सिंस x lies in second quadrant, so cos x would be negative, therefore cos x would be equals to minus 4/5। Are you guys following? Is this fine? Here we had sin x as what sin x was, it was 3/5, yes, so it was 3/5 because in the because x is in second quadrant, therefore sin x पॉजिटिव आ रहा है। हमने निकाल लिया cos x क्या, -4/5। हम रेसिप्रोकल रिलेशन का यूज़ कर सकते हैं, रेसिप्रोकल रिलेशन का यूज़ करके क्या मिलेगा हमारे पास कि sin x 3/5 है, तो cos x कितना हो जाएगा, इट वुड बी 5/3। अगर cos x है तो sec x क्या हो जाएगा, इट वुड बी -5/4। अब हम कोशेंट लगा सकते हैं, कोशेंट रिलेशन कि 10x क्या आ जाएगा मेरे पास, 10x क्या आ जाएगा, sin x अपॉन cos x। sin x कितना है, sin x कितना है मेरे पास, sin x है मेरे पास 3/5, cos x कितना है -4/5, 5 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या आ गया माइनस का 3/4। ठीक है, अब अगर ये आ गया माइनस का 3/4, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल 10x का रेसिप्रोकल cot x, तो cot x क्या आ गया, cot x आ जाएगा माइनस का 4/3। आई होप यू गाइज आर फॉलोइंग दिस, इज दिस फाइन, किसी को कोई दिक्कत, वी आर जस्ट यूजिंग द आइडेंटिटीज नथिंग एल्स, और हम इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव या नेगेटिव रहेगा। हियर वी आर इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, इसीलिए हमारे पास सिर्फ साइन और कॉसेक की वैल्यू पॉजिटिव आई, रेस्ट ऑल 4 वैल्यूज आर नेगेटिव। मूविंग ऑन टू द, सो इन दिस क्वेश्चन वी have this sin theta as -2√6/5 and our theta is in quadrant 4th and we need to find out all trigonometric ratios. So we'll use the same identity. Which identity? Sin square theta, or you can start with cos square theta plus sin square theta is equals to 1. Now before going to this square, let me tell you one thing, अगर यहाँ पर ये है 2√6 का स्क्वायर, तो हम इस स्क्वायर को कैसे खोलेंगे,
सो यहाँ पर क्या बन जाएगा, इट वुड बी 2 स्क्वायर इंटू दिस रूट ऑफ 6 स्क्वायर। अभी हमने डिस्कस किया था ना कि a इंटू बी रेज टू पावर समथिंग होगी, तो उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, a रेज टू पावर n इंटू बी रेज टू पावर n। एम आई क्लियर विद दिस? तो यहाँ पर क्या होगा, इट वुड बी 2 स्क्वायर वुड बी 4 एंड हियर ये दिस कैंसिल्स आउट दिस, सो इट वुड बी 6, सो इट वुड बी 24। यानी जहाँ भी 2√6 का स्क्वायर होगा वी विल यूज दिस 24। सो हियर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर -2√6/5 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। सो इट वुड बी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये कितना आ जाएगा, 2√6 का स्क्वायर, इट वुड बी 24/5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल्स टू 1। इज दिस फाइन? Should I rub this portion? Is it clear now? Yes. So now what we have this, that cos square theta would be equal to 1 minus 24/25. So on solving this we will get that 25 minus 24/25. So what we have now, अब हमारे पास क्या है, cos square theta would be 25 minus 24, it would be 1/25. Here cos theta would be what, it would be plus minus root of 1/25. So cos theta would be plus minus 1/5. Is this fine? Is this clear? Now we have cos theta as 1 upon, I mean plus minus 1/5. Now this lies in which quadrant? In the quadrant 4, और quadrant 4 में cos क्या होता है, पॉजिटिव। सो cos थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, 1/5। वाई? बिकॉज थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। इज दिस फाइन? अब हमारे पास साइन गिवन है, कॉस थीटा है, रेस्ट हम निकाल सकते हैं। कैसे करेंगे, लेट मी राइट वंस सारा क्या गिवन है हमारे पास। हमारे पास साइन थीटा क्या गिवन है, हमारे पास साइन थीटा गिवन है 2√6, आई मीन नेगेटिव ऑफ 2√6/5, और कॉस थीटा हमने क्या निकाल लिया, अभी कॉस थीटा हमने निकाला है 1/5। तो टेन थीटा की बात कर लेते हैं, टेन थीटा वुड बी व्हाट, टेन थीटा वुड बी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा क्या है हमारे पास, -2√6/5, ये कितना आ जाएगा 1/5, दिस 5 कैंसिल्स आउट दिस, सो इट वुड बी -2√6। ठीक है, सो इट वुड बी 2√6 नेगेटिव का। आगे इनके रेसिप्रोकल्स देख लेते हैं। रेसिप्रोकल्स में साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा, तो वो क्या बन जाएगा, -5/2√6। नाउ चाहो तो इसको रेशनलाइज कर लो या फिर यहीं पर छोड़ लो, अभी के लिए यहाँ छोड़ते हैं फिर रेशनलाइज करते हैं। सेक थीटा क्या आ जाएगा, सेक थीटा आ जाएगा 5, और उसके साथ दिस कॉट थीटा वुड बी व्हाट, -1/2√6। ओके, नाउ वी विल डू व्हाट, वी विल डू रेशनलाइजेशन। आप यहाँ पर छोड़ सकते हैं, देयर इज़ नो इशू, ठीक है, बट अगर रेशनलाइज करना चाहते हैं तो रेशनलाइज कर सकते हैं। हम डेनोमिनेटर को रेशनलाइज कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पर -1/2√6 है, तो इसको √6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब √6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, √6 इंटू -1, इट वुड बी √6 अपॉन 2, √6 का √6 से करेंगे तो 6 आ जाएगा, तो 2 इंटू 6 इट वुड बी 12, सो -√6/12। बट बिकॉज हमें क्वेश्चन को ध्यान रखना है, सो दिस वुड बी द आंसर। ये मैं फर्दर स्टेप बता रहा हूँ, अगर कभी आप आंसर मैच करें और कुछ और आंसर दिखे तो इट वुड बी सेम। इज दिस फाइन? सो इट वुड बी 12। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन दिस वुड बी द आंसर। इज दिस फाइन? तो हमारा साइन थीटा क्या है, -2√6/5, कॉस थीटा हमने निकाला 1/5। यहाँ पर कोशेंट रिलेशन का यूज़ करके -2√6 आ गया। ये यहाँ पर लेट मी राइट दिस प्रॉपरली, इट वुड बी -2√6,
तो इसका रेसिप्रोकल साइन का रेसिप्रोकल cosec, सो -5/2√6. हियर कॉस का रेसिप्रोकल sec, तो इट वुड बी 5 एंड कॉट थीटा का -1/2√6. इज दिस फाइन? इज देयर एनी इशू? आई डोंट थिंक कोई इशू होना चाहिए. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन. यहाँ पर क्या हो सकता है? अब यहाँ पर आपको क्वाड्रेंट सीधा नहीं बोला है, यहाँ पर आपको बोल दिया कि आपका एंगल इस एंगल और इस एंगल के बीच लाई करता है. अब हमको पता है यहाँ पर 0 डिग्री होता है या 0 रेडियन होता है, यहाँ पर 90 डिग्री या फिर π/2 रेडियन होता है, यहाँ पर 180 डिग्री या फिर π रेडियन होता है, यहाँ पर 3π/2 रेडियन या फिर 270 डिग्री होता है. ठीक है, यहाँ पर 2π होता है या फिर 360 डिग्री होता है. एक कंप्लीट रोटेशन होता है. हमारा एंगल कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है? 3π/2 से 2π के बीच में. यानी हम कौन से क्वाड्रेंट पर हैं? हम हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में. ठीक है, और हमें गिवन क्या है? सेक थीटा. तो सेक थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? पॉजिटिव, इसीलिए पॉजिटिव वैल्यू दी हुई है. इज दिस फाइन? हमें किस किस की वैल्यू निकालनी है? हमें सभी की वैल्यू की निकालने की जरूरत नहीं है. हम कौन कौन सी वैल्यू निकालेंगे? हम निकालेंगे टेन थीटा, कॉसेक थीटा, और फिर 10 का रेसिप्रोकल कर देंगे, इट वुड बी कॉट. आई मीन करना तो सभी कुछ पड़ेगा, बस ये है कि इसमें दिख रहा है कि हाँ नहीं करना पड़ेगा, बट वी विल हैव टू. अब हम सेक वाली आइडेंटिटी देखेंगे कि क्या हमारे पास 3 आइडेंटिटी थी, जिसमें से हमने पिछले कुछ केसेस में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू व्हाट? यस, इक्वल्स टू 10. आई मीन now here sec we will use which identity? 1 plus, now we have two more thing. first क्या हमने यूज़ की? cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1. यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा. दूसरी क्या है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा. तो कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करें? विच वुड बी बेटर? ये कर लेते हैं, 10 की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, तो हम पहली अगर आइडेंटिटी का यूज़ करें यहाँ पर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा. ठीक है, सेक की वैल्यू क्या दे रखी है? √3. नो, इट इज़ नॉट √3, इट इज़ 2, √2. सो इट वुड बी √2 स्क्वायर. इज दिस फाइन? सो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2. ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा. यहाँ से क्या आ जाएगा? टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू व्हाट? 2 - 1, ये वाला 1 आ जाएगा. यहाँ से क्या आ जाएगा? टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1. तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा कि जो टेन थीटा होगा उसकी वैल्यू क्या होगी? ±√1. क्या वैल्यू होगी? ±√1. सो टेन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? +-1. हम कौन से क्वाड्रेंट में हैं? फोर्थ क्वाड्रेंट में. और फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है? नेगेटिव होता है. तो यहाँ पर 10 की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1. इज दिस फाइन और नॉट? सही है ये. अब हमारे पास ओके हमारे पास है यहाँ पर सेक थीटा जो कि है √2. तो कॉस थीटा क्या आ जाएगा मेरे पास? 1/√2. ये चीज़ क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें नहीं. अब हम निकाल लेते हैं साइन, क्योंकि हमारे पास टेन थीटा भी है जो कि क्या होता है? -1. मतलब क्या होता नहीं है, मतलब इस केस में हमने निकाला है टेन थीटा -1. अब हमारे पास रिलेशन है, कोशेंट रिलेशन. क्या है कोशेंट रिलेशन? कोशेंट रिलेशन ये कहता है कि टेन थीटा जो होगा वो क्या होगा? साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा. क्लियर है ये बात? किसी को कोई दिक्कत नहीं. टेन थीटा की वैल्यू -1 है. साइन थीटा मैं निकालना चाह रहा हूँ. कॉस थीटा क्या आ जाएगा? आई मीन कॉस थीटा की वैल्यू क्या है? 1/√2. ये √2 ऊपर चला जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास? -1 इक्वल्स टू √2 टाइम्स साइन थीटा. √2 टाइम्स
साइन थीटा। तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, -1/√2। ठीक है, मेरे पास साइन थीटा की वैल्यू -1/√2 आ गई। तो कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल इसका, दैट वुड बी -√2। क्या मेरे पास कॉट थीटा की वैल्यू है, हाँ निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये टेन थीटा की वैल्यू -1 आई है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। ठीक है, सो कॉट थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। ठीक है, ये साइन, सो हियर इट वुड बी साइन। ओके, नाउ अब हम देखते हैं हमको वैल्यू किस चीज़ की निकालनी है। वी वॉन्ट 1 + tan theta plus cosec theta. Should we do here or on the next page? Okay, let us do on the next page. 1 + tan theta, it is what, 1 + tan theta plus cosec theta, and it is upon 1 + cot theta minus cosec theta. 1 + cot theta minus cosec theta. Is this fine? Is there any issue? I don't think there should be any. Is this clear? I don't think there should be any issue. Okay, let us put the values 1 as it is. What is the value of tan theta? We have got -1. What is the value of this cosec theta? Let us see what is the value of this cosec theta. It is -√2 upon 1 plus cot theta is again -1 and -√2. Now after simplification क्या हो गया, ये 1 - 1 -√2 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर 1 - 1 प्लस √2, दिस 1 कैंसिल्स दिस 1, दिस 1 कैंसिल्स दिस 1, क्या बचा हमारे पास, -√2 अपॉन में √2, दिस √2 कैंसिल्स दिस √2, आंसर इज -1 अपॉन नोट, -1/1 मीन्स 1 ऑफ माइनस। सो ये आंसर मेरे पास क्या आ गया, -1। इज दिस क्लियर, क्या किया है हमने, so the answer is -1. is this fine what we have done? हमारे पास sec थीटा की वैल्यू थी, हमने वहाँ से tan थीटा की वैल्यू निकाली यूजिंग दिस आइडेंटिटी, 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, वहाँ से tan थीटा निकालने के बाद हमने क्या किया, sec थीटा हमको √2 गिवन था, हमने उसका रेसिप्रोकल करके cos थीटा की वैल्यू निकाल ली। फिर इस कोशेंट रिलेशन का यूज़ करके साइन थीटा की वैल्यू निकाल ली, साइन थीटा की निकल गई तो रेसिप्रोकल करके कॉसेक थीटा की निकाल ली। ओके, क्लास लेंदी हो रही है बट द कॉन्सेप्ट्स वुड बी क्लियर, दिस वुड बी द लास्ट क्वेश्चन। सो इसमें भी सेम है, साइन थीटा 4/5 है, तो कॉस थीटा कॉट थीटा टेन थीटा, आई मीन ऑलमोस्ट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज़ हो रहे हैं। सो लेट अस अगेन यूज़ द सेम कॉन्सेप्ट। तो हम कौन से आइडेंटिटी लगा देते हैं, बिकॉज कॉस हमें ज़रूरत है, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब देखो ये आ रहा होगा दिमाग में कि सेम ही क्वेश्चन बार बार क्यों करा रहे हैं, बिकॉज हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जैसे ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट बोल रखा था कि थीटा क्वाड्रेंट 4 में लाई करता है, तो आप समझ गए डायरेक्ट। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन था इसमें डायरेक्ट ये नहीं बोला गया था कि किस क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट 1 क्वाड्रेंट 2 क्वाड्रेंट 3 क्वाड्रेंट 4, ऐसा कहीं नहीं लिखा। उसने ये आपको खुद से करने के लिए दे दिया कि आप खुद गेस करें कि कौन से क्वाड्रेंट में। गेस इज रॉन्ग वर्ड, मतलब खुद आप समझ पाएँ कि हाँ 270 से 360 डिग्री के बीच में है, तो ये 4th क्वाड्रेंट में है। अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखें, इसमें कहीं भी क्वाड्रेंट का जिक्र नहीं है, यानी हमको सारे केसेस लेके चलने पड़ेंगे कहीं, क्योंकि सिर्फ साइन थीटा क्या दिया है, पॉजिटिव दिया है। अब साइन थीटा अगर पॉजिटिव दिया है तो इसका क्या मतलब है, या तो साइन थीटा पहले क्वाड्रेंट में है, नॉट साइन थीटा, या फिर ये कहूँ कि थीटा या तो पहले क्वाड्रेंट में है या तो फिर वो दूसरे क्वाड्रेंट में, क्योंकि तीसरे और चौथे क्वाड्रेंट में हो नहीं सकता, बिकॉज अगर थीटा तीसरे और चौथे क्वाड्रेंट में होता
तो मेरे ये जो साइन थीटा की वैल्यू आती है वो नेगेटिव में आती। तो मुझे इसमें दो केस कंसीडर करने पड़ेंगे। पहला केस कब, जब मेरा थीटा लाई करेगा पहले क्वाड्रेंट में। सो ये अगर मान लो आप क्वाड्रेंट बना रहे हैं, तो सपोज दिस इज वाई वाई डैश एक्स एक्स डैश, तो मेरा या तो इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा या तो इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो ये कहीं क्वेश्चन में गिवन था नहीं, ये आपको खुद से समझना था कि अगर साइन थीटा पॉजिटिव दिया है तो इसका मतलब वो या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो डिफरेंस समझ में आया कि सेम क्वेश्चन, मतलब ऐसा तो नहीं है कि सेम ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन करने का तरीका सेम है बट क्वेश्चन तो अलग अलग है ना। यस, सो लेट अस इरेज दिस। समझ गए होंगे आप। तो यहाँ पर हम साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास है तो कॉस निकालना चाह रहे हैं। सो दिस वुड बी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4/5 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। सो इट वुड बी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 16/25 equals to 1. So it would be cos square theta equals to 1 minus 16/25. It would be what? 25 minus 16/25. तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा कि cos square theta is 9/25. सेम थिंग, cos थीटा क्या बन जाएगा मेरे पास, प्लस माइनस रूट ऑफ 9/25. So this cos theta would be what? Plus minus 3/5. Okay, so it would be 3/5. अब थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, गेस किया हमने, पहले क्वाड्रेंट में है और या तो दूसरे क्वाड्रेंट में है। नाउ द थिंग इज, अगर ये पहले क्वाड्रेंट में है तो cos थीटा क्या होगा, पॉजिटिव, और अगर दूसरे क्वाड्रेंट में है तो cos थीटा क्या होगा, नेगेटिव। यानी इस वक्त हमें क्या करना पड़ेगा, दो केसेस बनाने पड़ेंगे। एक केस जहां पर थीटा जो है वो पहले क्वाड्रेंट में लाई करता है, दूसरा केस जहां पर थीटा दूसरे क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो आंसर आपके उसी बेसिस पर चेंज होंगे। सो लेट अस डू दिस। एक साइड हम क्या करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट ले लेते हैं। यहाँ सपोज करो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, थीटा। So should I write properly? Okay, let us write. Here it is that suppose this is case 1. Case 1 क्या है, theta lies in first quadrant. यहाँ पर क्या है, that case 2 कि theta lies in second quadrant. यहाँ पर cos थीटा की वैल्यू 3/5 आ रही है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो cos थीटा वुड बी 3/5, और अगर सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो cos थीटा वुड बी -3/5। क्लियर है यहाँ तक? आई होप क्लियर होगा। ठीक है, तो मेरे पास tan थीटा निकाल सकता हूँ मैं। अब tan थीटा कैसे निकलेगा, साइन थीटा अपॉन cos थीटा। अब साइन थीटा क्या गिवन है मेरे पास, 4/5, हियर इट इज 4/5। ठीक है, और cos क्या है 3/5, दिस कैंसिल्स आउट, तो ये क्या आ जाएगा 4/3। आई बात समझ में? यहाँ पर करेंगे तो tan थीटा कैसे निकलेगा, इट वुड बी 4/5 अपॉन -3/5, दिस 5 कैंसिल्स आउट, सो इट वुड बी -4/3। क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो tan क्या होगा, नेगेटिव का होगा। अब साइन अगर मेरा 4/5 है तो cosec थीटा बीइंग द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा क्या हो जाएगा, 5/4। cos थीटा अगर 3/5 है तो sec थीटा बीइंग द रेसिप्रोकल ऑफ 3/5, आई मीन बीइंग द रेसिप्रोकल ऑफ cos वुड बी व्हाट, 5/3। cot थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है, tan थीटा 4/3 है तो cot थीटा 3/4। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आई डोंट थिंक सो कि होनी चाहिए। तो ये सारे क्या आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अब यहाँ पर cosec थीटा क्या आ जाएगा, क्योंकि cosec थीटा हम सेकंड क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव आएगा, तो ये क्या आ जाएगा 5/4। sec थीटा क्योंकि हम सेकंड क्वाड्रेंट में है
तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का 5/3। कॉट थीटा, क्योंकि हम किस में हैं, थर्ड में है, तो इट वुड बी माइनस का 3/4। यानी अब जो ये मेरी वैल्यू आएगी ये क्वाड्रेंट के हिसाब से ही आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम केस 1 ले रहे हैं। केस 1 कौन सा केस है, व्हेन योर थीटा लाइज इन क्वाड्रेंट फर्स्ट। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, लेट अस सी। हमें वैल्यू निकालनी है, यस, दिस 5 cos थीटा प्लस 4 cosec थीटा, 5 cos थीटा प्लस 4 cosec theta, and it is plus 3 tan theta plus 3 tan theta is this fine upon it was 4 cot 3 sec 5 sin 4 cot, oh 4 cot, it is, I mean, irritating, 4 cot 3 sec 5 sin 3 sec 5 sin 3 sec theta plus 5 sin theta. Is this fine? Just check once. Is this clear? 4 cot theta plus 3 sec theta plus 5 sin theta. 5 न्यूमरेटर में क्या है, 5 cos थीटा प्लस 4 cosec थीटा प्लस 3 tan थीटा। अब वैल्यूज़ क्या क्या हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो हमें किस किस की चाहिए, लेट अस सी। सबसे पहले चाहिए cos की। cos क्या है, cos थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3/5। So here it is, let us write once so it would be easy. Cos theta की वैल्यू है हमारे पास 3/5, so it would be 3/5। और किसकी चाहिए हमको, cosec की चाहिए, तो cosec की वैल्यू क्या है, 5/4। cosec would be 5/4। tan थीटा चाहिए, क्योंकि हम पहले क्वाड्रेंट में हैं तो पॉजिटिव होगा tan थीटा। tan थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, 4/3। ठीक है, कॉट थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका रेसिप्रोकल यानी 3/4। सेक थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, 5/3। और साइन थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, 4/5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेट अस पुट द वैल्यूज। ठीक है, ये हो गया 5 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, 3/5, सो इट वुड बी 3/5 प्लस 4 into cosec, cosec would be 5/4 plus 3 into tan theta, it would be 4/3. Are you guys following what we are doing here? Upon 4 cot theta would be 3/4 plus 3 into sec theta, which is 5/3 plus 5 into sin theta, which is 4/5. Are you guys following this? कुछ भी नहीं है इसमें, ये 5 से ये 5 कैंसिल, इस 4 से ये 4 कैंसिल, इस 3 से ये 3 कैंसिल, इस 4 से ये 4 कैंसिल, इस 3 से ये 3 कैंसिल, इस 5 से ये 5 कैंसिल। इज दिस फाइन? ऊपर क्या बचा हमारे पास, ऊपर बचा 3, बिकॉज यहाँ 1 है, 1 इंटू 3 3 प्लस 5 प्लस 4 अपॉन इट इज़ 3 प्लस 5 प्लस 4, 5 3 8 12 upon 12, it would be what, 1. So what is the answer of this, it would be 1. Is this clear? Do you have any issue here? I don't think there should be any issue. Let us move to this quadrant second. Should I do in this only, should I rub this and do that of quadrant 2 in this page only, or should I just okay, here moving forward let us do in this only, because ये तो हो गया होगा। अब हम सेकंड
केस ले लेते हैं क्वाड्रेंट वाला. ओके, सो हियर इट वुड बी, there would be just change in signs only, positive negative. Here we want in quadrant second, so taking in quadrant second, we are in quadrant second. So quadrant second में cos की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3/5. cosec की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, tan की वैल्यू -4/3, cot की वैल्यू -3/4. दिस वुड बी नेगेटिव और साइन पॉजिटिव रहेगा. इज दिस फाइन, कोई इशू नहीं. सो लेट अस पुट दिस, इट वुड बी 5 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3/5. सो 5 इज़ नॉट क्लियरली विजिबल, सो इट वुड बी 3/5 प्लस 4 इंटू कॉसेक थीटा. कॉसेक क्या है हमारे पास, 5/4 प्लस 3 इंटू टेन थीटा. टेन थीटा क्या है, -4/3. ठीक है, अपॉन इट वुड बी 4 इंटू कॉट थीटा. कॉट थीटा की वैल्यू क्या है, -3/4 प्लस 3 सेक थीटा. सेक थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, -5/3 प्लस 5 साइन थीटा. साइन थीटा क्या है, 4/5. ओके, आई होप देयर शुड बी नो प्रॉब्लम हियर. सेम थिंग, दिस कैंसिल्स दिस, this cancels this, this cancels this, this cancels this, this cancels this, 5 cancels 5. क्या बचा हमारे पास अब, दिस वुड बी -3 प्लस 5 प्लस -4 अपॉन -3 प्लस -5 प्लस 4. So here it would be what, -3 plus 5 minus 4 upon -3 minus 5 plus 4. अब न्यूमरेटर में क्या है, -3 -4 -7, -7 plus 2, it would be -2, -3 -5 -8 plus 4, it would be -4. This minus cancels out, 2 cancels out this 4, so it would be 1/2. So in the first quadrant जो वैल्यू आ रही थी वो 1 आ रही है, और जो सेकेंड क्वाड्रेंट में वैल्यू आ रही है वो आ रही है आपकी हाफ. इज दिस फाइन, दिस वाज द क्वेश्चन. लेट मी शो यू अगेन. क्या क्वेश्चन था कि साइन थीटा 4/5 है, तो 5 कॉस थीटा प्लस 4 कॉसेक थीटा प्लस 3 टेन थीटा, इसकी वैल्यू क्या आएगी. अब हमने क्या बोला कि क्योंकि साइन थीटा जो है वो मेरे को 4/5 दिया है, तो या तो ये क्वाड्रेंट 1 में है या फिर ये क्वाड्रेंट 2 में है. अगर ये क्वाड्रेंट 1 में है तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1, और अगर क्वाड्रेंट 2 में है तो उसका आंसर क्या आएगा, हाफ. इज दिस क्लियर. व्हाट वी हैव डन टुडे, वी हैव डिस्कस्ड द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्रिक ratios. So next class we will be doing trigonometric ratios of some specific angles, यानी कि sin 30 पे, sin 45 पे, यानी हम 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे और 90 डिग्रीज पे, आई मीन इन स्पेसिफिक एंगल्स पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू देखेंगे. ठीक है, कि sin 45 की क्या वैल्यू है, cos 45 की क्या वैल्यू है, इस टाइप से. ओके, सो that's it for today's lecture. We'll meet you in the next class. Thank you.